शुरुआत होने जा रही है पुरुषों के 3000 मीटर स्टीपल चेस की। शुरुआत होती हुई यहाँ पर कुल मिलाकर 5 एथलीट हैं और इन 5 एथलीट में सबसे पहले इस समय आगे बढ़ रहे हैं रामचंद्र एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के और बिब नंबर 233। जैसा कि हमने आपको बताया था कि नागराज वेंकटेश दिवाते जिन्होंने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में गोल्ड मेडल जीता था इसी इवेंट में 9 मिनट 38.58 सेकेंड की टाइमिंग के साथ, और साथ ही साथ ऑल इंडिया वीवी इंटरनेशनल इवेंट जो उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुई थी वहां भी 3000 मीटर स्टीपल चेस के स्वर्ण पदक विजेता हैं। कर्नाटक के हुबली से आते हैं और कमाल के एथलीट हैं। Well, that's the first lap that you're going to look at. It's partial lap, and that's a lap without any obstacles. Look at that curvature there. They're focusing on getting a good position, but that's the boy. That's the boy that Anand has been talking about, Divate. All the experience. He's actually gone there on the far side without any obstacles. He's got a good position for himself. He's also avoided going out too fast for himself because he's got the experience and he's finding a very comfortable pace within the main pack to conserve the energy. The hurdles will now start coming into play. 28 hurdles, 7 water jumps, 3.66 meters the water jump, 12 feet pit that we'll watch very slowly. रास्ते में बाधाएं आ रही हैं, उन बाधाओं को पार करके अपने अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना इन एथलीट्स का मुख्य उद्देश्य है। बिब नंबर 247 विकास रे की बात करें तो 9 मिनट 08.30 9 मिनट 08.30 सेकेंड उनका बेस्ट है जो 2023 में 21 अक्टूबर को उन्होंने बनाया था, और अगर आज उस तरह का प्रदर्शन करते हैं तो निश्चित तौर पर पोडियम फिनिश की तरफ जाएंगे। लेकिन कर्नाटक के नागराज वेंकटेश दिवाते इस समय सबसे आगे नजर आ रहे हैं और उनके ठीक पीछे हैं सौरभ। बिब नंबर 247 विकास रे ने अब दूसरा स्थान हासिल किया है। विकास और नागराज के बीच इस समय बैटल नजर आ रही है। The laws of the event that you're watching, that's the water jump. There are 7 of the water jumps that they will have to take, and the laws of this event allows the athlete to jump on and off the water jump that you just saw and to use the same technique in clearing the steeplechase hurdles. The steeplechase is obviously derived from the cross-country running and the obstacle courses. 233, Nagraj Venkatesha Divate continues to keep the lead out here. We've got 5 laps to go. It's a combination that you're watching of distance running, that's the 3000 meters. It's a combination of hurdling and the water jumps, and as such combines the training which is so necessary for the distance runner and the hurdler. नागराज वेंकटेश दिवाते इस समय सबसे आगे, लेकिन कह सकते हैं कि अभी ग्रुप है और ऐसा भी नहीं कह सकते कि नागराज के पास क्लियर कट एडवांटेज है कि वो सबसे आगे चले जाएंगे। यहाँ पर बिहार के विकास रे दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। तीसरे स्थान पर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के सौरभ हैं और चौथे पोजीशन पर जो एथलीट हैं वो हैं मनोज कुमार जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिकट केरल की चुनौती पेश कर रहे हैं। मिलिंद, यहाँ से इन 4 एथलीट्स में से कोई भी बाजी मार सकता है, ऐसा इस समय नहीं कहा जा सकता है कि नागराज वेंकटेश दिवाते के पास क्लियर कट एडवांटेज है। If you're now going to look at that water jump, they're allowed to actually jump without and vault over the barriers, but that's an attempt which is seldom used. That close bunch might allow some of the others to push themselves. Is the experience of Nagraj Venkatesha Divate, Karnataka University. Take him towards the final end. We're still going to approach the mid part of the race. That's where things might start happening. They're all making sure that they maintain and conserve the energy. You're looking at the hurdles coming up very gradually. The water jump and the hurdles are solid. That's the solid hurdle. And the technique that they're using is very similar to what you use in the hurdles. It's still Divate in the lead. He's making sure that he maintains a steady and a comfortably hard pace. The first to vault over the hurdle, he's utilized the pack to run efficiently, and Divate, the phase that we're talking about, conserves the energy for the repeated obstacles, and he will look at the mid phase because we still have 4 laps to go out here.
नागराज वेंकटेश दिवाते इस समय सबसे आगे चल रहे हैं और विकास उनके ठीक पीछे हैं। और अब जबकि 1600 मीटर की रेस से थोड़ा कम बाकी है, विकास किस तरह की चुनौती पेश करते हैं स्टीपल चेस, जहां पर आपकी स्पीड, एजिलिटी और इंड्योरेंस की टक्कर होती है। साथ ही साथ आप किस तरीके से आप आने वाली बाधाओं को पार करते हैं और उसके बाद भी अपनी स्पीड बनाकर रखते हैं। वाटर जंप की जो बैरियर है उसमें कभी ना कभी 0.3 सेकंड और 0.5 सेकंड का गैप आ जाता है दो एथलीट्स के बीच में, और वही मेडल डिसाइडर भी बन जाता है। अभी आपने देखा कि हर्डल्स को पार करना और उसके बाद अपनी गति को बरकरार रखना, चूंकि ये हर्डलर्स नहीं हैं, ये बात भी आपको समझने की ज़रूरत है। जो हर्डल के विशेषज्ञ होते हैं उनके लिए अलग कहानी होती है कि हर्डल्स को पार करके अपनी स्पीड को मेंटेन रखना, लेकिन बीच बीच में आने वाली हर्डल्स को पार करके अपनी गति को लगातार मेंटेन करते ये चार एथलीट इस बात की पूरी संभावना बढ़ा रहे हैं मिलिंद कि बहुत बेहतर ढंग से ये रेस अपने फिनिश लाइन की तरफ आगे जा सकती है। 3 to go. In fact, they are now at the back straight. You're looking at the obstacle coming into view once again. 10 to 15 meters prior to the obstacle or even the water jump. These athletes accelerate in order to jump up to the barrier and then clear either the hurdle or the water. Look at the pace now being increased, and that allows them to gain the momentum. The takeoff that you just watched there usually occurs 1.5 to 2 meters prior to the barrier, allowing them the liberty to get across the barrier, which is slightly higher than the normal one. The water jump now, flexing the legs, making sure that you are at 90 degrees. The upper body was kept low so that the athlete there passed over the barrier rather than jumping upwards and forward. यहाँ फिटनेस के साथ साथ हर्डलिंग इकोनॉमी और स्ट्राइड काउंट सबसे बड़ा हथियार होता है, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नागराज एक जैसा काउंट रखकर ऊर्जा बचा रहे हैं। कमाल की तकनीक और कमाल की समझ भी है, और जैसे जैसे ये रेस आगे बढ़ रही है वैसे वैसे किक डाउन भी एथलीट्स अब थोड़ी देर में शुरू करते नजर आएंगे। उनकी तरफ से अभी भी स्पीड को मेंटेन किया जा रहा है। 700 मीटर की रेस अब भी बाकी है। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था कि एन दिवाते यानी नागराज दिवाते के नाम 8 मिनट 45.95 सेकेंड का यहाँ पर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड है। क्या उसकी बराबरी होगी या उससे बेहतर टाइमिंग होगी, लेकिन ये चार एथलीट मिलिंद, नागराज, वेंकटेश दिवाते, विकास रेस, सौरभ और मनोज कुमार, इन चारों में से कोई भी बाजी मार सकता है, और विकास कुमार बिल्कुल शोल्डर टू शोल्डर हैं इस समय नागराज दिवाते के। Well, the essence of the technique that we've been repeatedly talking about, the barrier technique, 4 of them are still in the fray. Top of the barrier, the common technique that they're using out here, especially for the water jump, which will now come in view. That's the crucial element that you're watching, the water jump, resulting in the shallow landing that you just saw, allowing for a quicker exit from the 12-foot long barrier. We will now come slowly but surely to the last 400 meters. Will it change from here on? Anand, this has turned out to be a very, very close event. बहुत करीबी मामला है। ये चार एथलीट सभी एक ही पेस में हैं। जब किक डाउन स्टार्ट होगा, अब बेल घंटी की आवाज आपको सुनाई देने वाली है। ये घंटी की आवाज, और घंटी की आवाज का मतलब है कि आखिरी 400 मीटर की क्या रणनीति है। चूंकि हम देखते हैं कि 3000 मीटर की जो रेस है, जो मिडिल डिस्टेंस रेस मानी जाती है स्टीपल चेस की, उसमें आखिर के 200-250 मीटर में असली परीक्षा शुरू होती है। किसके पास कितनी ऊर्जा बाकी है और किस ऊर्जा के साथ वो कब स्ट्राइड करता है, कब चार्ज करना शुरू करता है। अब भी सिमिलर पेसिंग में हैं ये चार एथलीट। I think they are going about, Anand, as if they are having an evening practice session, each one perhaps talking to the other, each one saying, do you want to go in front or do I go in front? Let's settle that out here. बिहार की उम्मीद विकास पर। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड होल्डर नागराज ने अब गति बढ़ाने का फैसला किया है, लेकिन उनके ठीक राइट शोल्डर पर हैं विकास। मनोज और सौरभ भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। ये आखिरी वाटर जंप जाता हुआ, और अब देखिए तेजी आ गई है। अब देखिए नागराज विकास
दिवाते ने तेजी से कदम बढ़ा दिए हैं। जो आपको सामने नजर आ रहे हैं वो एक लैप के डिस्टेंस में बिब नंबर 390 सौरभ सबसे आगे हैं। अब गति भी है, तेजी भी है। क्या नागराज यहां फिनिश करेंगे? टॉप फिनिश करने के करीब नागराज। यहां पर नागराज के नाम जाता हुआ, यहां पर नागराज के नाम जाता हुआ गोल्ड मेडल। सौरभ ने जीता है यहां पर सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज की लड़ाई बेहद दिलचस्प दिखी। Well, what an event this turned out to be. The speed and the endurance